हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो इन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, so we all know about the number line. If I draw a line, sorry, so suppose if I draw a line, if I draw a line, let's say this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5. On the left hand side it is -1, -2, -3, -4, -5. So this we call number line. क्या बोलते हैं इसको? हम नंबर लाइन बोलते हैं. In a number line there is a 0 and right hand side of 0 is positive number and left hand side of 0 is negative number, right? इसको बोलते हैं number line. So in a previous standard we have already studied how to find the distance on a number line, right? जैसे मैं आपको बता देता हूँ. Suppose there is a point, let's say this -4 is P. The coordinate of this P is -4 and the coordinate of Q is 3. Coordinate of Q is 3. And if I say find the distance between P comma Q, then you will say the coordinate of P is -4 and coordinate of Q is 3. So here 3 is greater than -4. So what you will do, you will subtract -4, मतलब smaller number from the bigger number. So the distance will be 3 minus plus this will be what? 7. So if you count, the distance of P from Q and distance of Q from P is 7 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, right? Similarly, if I mark one more point, if I mark one more point, let's say AB, this 4 is A and this 1 is B. So again if I find the distance between A comma B, ये हमने 9th में फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, distance between two points, right, on a number line. So if you see the coordinate of A is 1 and the coordinate of A is 4 and the coordinate of B is 1. So here 4 is greater than 1. So आपको क्या करना है? What you have to do, you have to subtract the smaller number from the bigger one. So bigger one is what? 4 and the smaller one is what? 1. So 4 minus 1 is 3. So the distance between A comma B is 3. तो A और B के बीच में जो distance है वो हो जाएगा आपका 3. क्या हो जाएगा? 3. देखिए 3, right? So this was the distance. This was the formula to find the distance on a number line. Suppose if I ask you find the distance of these 2 points on a coordinate axis. तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है 7th चैप्टर में. दिस इज x axis and this is y axis, right? This was a horizontal number line and this is a vertical number line. यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मतलब दिस x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या नंबर होते हैं? नेगेटिव. y एक्सिस के ऊपर साइड अबोव साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव. एंड डाउन साइड क्या होते हैं? नेगेटिव. ये सबको याद होना चाहिए. एंड ये दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, आप 9th का वीडियो रेफर कर सकते हैं. 9th के वीडियो में मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बताई हुई हैं. सो नाउ टुडे आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन any two points on an axis. That means if I draw this is x axis, right? This is y axis, right? So if I draw two points on this axis, let's say I'm drawing a point, I'm marking a point on x axis. This is my x axis, this is my y axis. So let's say I'm drawing a point here, right? Here. So let's say the coordinate of this point, first we will represent the x coordinate, second we will represent y coordinate. Let's say this is A. So let's say the coordinate of this point is x1, 0. Y value is 0 because point lies on a x axis, तो y value क्या होगा? 0.
लेट्स से ये b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b, सॉरी this is b. Let's say the value of this on this point is x2 comma 0. The coordinate of this point is x2 comma 0 because both lies on x-axis, so their x value differ and their y value is 0 because it is lies on y-axis. Again I am saying this because it is lies on x-axis, so their y value is 0. So if I say what is the distance between these 2 points, what is the distance between these 2 points, that is distance between a and b. So again y value is 0, y value is 0. So what I have to see, I have to see the x value, their x coordinate. What I have to see, their x coordinate. So here you can see their x2 is greater than x1, right? यहाँ पे ये 0 होता है, इस साइड आप जैसे जैसे जाओगे तो वो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट? आप यहाँ पे 1 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 4 5, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि x2 क्या होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1. सो द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विल बी व्हाट, x2 माइनस x1, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन x2 सॉरी a एंड b इज व्हाट, x2 माइनस x1. लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. This is y-axis, this is x-axis, this is x-axis. Suppose I'm taking a point, let me see it is recording or not. Let me take a point. Let's say this point is 1 comma 0 and the name of this point is a. Let's say this point b is 4 comma 0, right? So यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 4 है, तो बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और फिर 4 आएगा, राइट? y value is 0 because point is lies on x-axis, point is lies on x-axis. और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, to find the distance between any two points on an axis. मतलब point कहाँ पे लाइज करेगा, point lies on the axis, point lies on the axis. So अगर मैं बोलूँ यहाँ पे distance बताइए, तो distance a, b. तो आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का हो जाएगा, 3 यूनिट. द डिस्टेंस विल बी 3 यूनिट, 1 2 and this is what 3. But mathematically how we will represent, their y coordinate is 0, their y coordinate is same, equivalent, right? 0 0 है, दोनों equal है. So what we will see the x coordinate. Which coordinate is changing? X coordinate is changing. So we will see the x coordinate. So x coordinate, the one value is 4 and the one value is 1, right? So here 4 is greater than 1. So what we have to do, we have to subtract the smaller one from the bigger one. So 4 minus 1, answer is 3. So the answer is 3 unit, right? Similarly, any 2 points can lies on the y-axis also. कोई भी 2 पॉइंट होगा वो y-axis पे भी लाइज कर सकता है. जैसे लाइक मैं आपको बता देता हूँ. लेट मी चेंज द कलर. ये है मेरा ओरिजिन O. सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लू A और एक पॉइंट ले लू B. तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, दैट इज A एंड B. दिस 2 पॉइंट्स लाइज ऑन अ y-axis. So their x coordinate is 0. Their x coordinate is 0. तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा 0, y2. जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका y का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6. तो मतलब ये y के जो कोऑर्डिनेट है, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, डिफर करेंगे. इसलिए मैंने इसको y नहीं दिखाया, y1 और y2, मतलब दीज 2 वैल्यूज आर डिफरेंट, राइट? सो अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, so again what I have to see which coordinate is changing. So their y coordinate is changing, right? So let's say distance between a comma b is, now their y coordinate is changing, so we have to subtract the smaller one from the bigger one. Suppose y2 is greater than, y2 greater ही होगा, suppose क्या y2 is greater होगा क्योंकि ऊपर साइड है, तो y2 is greater than y1, तो ये हो जाएगा y2 minus y1. So this is the formula for distance. Suppose if somebody take this as 0 comma y1 and this as 0 comma y2, so the formula get changed. This will be a minus b. Here y1 is greater than y2, right? पहले वाले केस में क्या था, y2 ग्रेटर था किससे, y1 से, तो हमने y2 में से सब्ट्रैक्ट किया क्या, y1. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y1 is greater than y2. So this will be y1 minus y2. The formula get changed accordingly, right? If you change the coordinate value, the formula get changed accordingly, right? Now let me take one more example for this y-axis also. This is x-axis, this is y-axis. Let's say if I take a point here, तो इसका क्या होगा, ये है a, इसका x coordinate होगा 0, y वाला होगा 2.
और इसका बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5, 0,5। एंड मैंने आपको बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे देयर एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, सेम 0 0 इक्विवेलेंट, राइट। व्हाट इज चेंजिंग, देयर वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। So 5 and 2, which one is greater, 5 is greater. So what I have to do, I have to subtract 2 from the 5. So this will be what, again 3 unit, right। आपको समझ में आ रहा होगा, right। इसके अकॉर्डिंगली आप पॉइंट चेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। okay, so this was the distance between any 2 points on an axis। now next, second part, we will find distance between any 2 points if the segment joining these 2 points is parallel to any axis in a xy plane, so again let me explain you। to find the distance between 2 points if the segment joining these points is parallel to any axis in the xy plane। let me write, then I will explain you what it is saying। suppose this is my x-axis, this is my y-axis। now in earlier case what we had seen that point lies on the x-axis and y-axis। suppose if the 2 points are not lies on the x-axis and y-axis, then and suppose this like this is point A and point B, right। so are these 2 point lies on x-axis, क्या ये दोनों point x-axis पे है, नहीं। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट के लाइन को, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं, इफ आई ज्वाइन दिस 2 points, if I join these 2 points, the segment that is AB, the segment AB is parallel to what, x-axis, is parallel to what, x-axis, right। so हमको इसका डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, इसका डिस्टेंस बताना है। so to find the distance between 2 points if the segment joining these points is parallel to any axis। तो देखिए यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट है, इनका जो लाइन जॉइनिंग सेगमेंट है वो किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, राइट। टू एनी एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x1, y1 होगा। सपोज बी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y2 होगा। क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, y2 नहीं, y1 ही होगा। बताता हूं कैसे, y1 ही होगा क्योंकि पैरेलल है ना, ये y का डिस्टेंस देखिए पैरेलल ही है। तो x1, y1 होगा और x2, y1 होगा, राइट। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अगेन फिर से फाइंड आउट करना है डिस्टेंस a, b, डिस्टेंस a, b। तो एक मेथड है कि देखिए दोनों में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ओनली x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, विच कोऑर्डिनेट चेंजिंग, x कोऑर्डिनेट चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, राइट, y1, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सिर्फ उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम द ग्रेटर वन, राइट। देयर इज वन मोर मेथड, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सिस के ऊपर, तो एक्सिस के ऊपर आएगा, तो कौन से एक्सिस के ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, समझो इसका नाम मैं देता हूँ L, इसका नाम मैं देता हूँ M। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट होगा 0 और x कोऑर्डिनेट होगा x1, ये हो जाएगा x2, 0, राइट। इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो अगेन इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द डिस्टेंस, देन अगेन x2 इज ग्रेटर देन x1, सो द डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1, राइट। मतलब आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं, देयर x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, देयर x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द बिगर वन, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। इफ आई टेक अ एग्जांपल, सपोज यहाँ पे मैं a ले लेता हूँ,
ए ले लेता हूँ 2,3 और यहाँ पे बी ले लेता हूँ 4,3। तो देखिए यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, सेम ही है, y का कोऑर्डिनेट क्या है, सेम ही है। तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट, देखिए 4 इज ग्रेटर देन 2, तो आई विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, राइट। तो आंसर इज व्हाट 2 यूनिट, आंसर इज व्हाट 2 यूनिट, राइट। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है आपको? ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट का जो लाइन जॉइनिंग सेगमेंट है वो पैरेलल टू किसी एक्सिस है, मतलब ये पैरेलल टू किसके एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस पे, राइट। सो हमें क्या करना है, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्सिस के ऊपर। तो वहां से क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट। क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, राइट। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, राइट। ये जो डिस्टेंस मिला, ये मिला एलएम का। क्या मिला, एलएम का। तो जो एलएम का डिस्टेंस होगा वही एबी का डिस्टेंस होगा। रेक्टेंगल बन रहा है ना बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो जो एलएम होगा, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो एलएम होगा वही एबी होगा, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली आप देख लीजिए, जो कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज हो रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वाई कोऑर्डिनेट है दोनों का, y1 तो सिर्फ x वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। वैसे ही कि वैसे ही कोई पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं दो पॉइंट ले लूं, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये पैरेलल टू क्या दिख रहा है आपको, x एक्सिस दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो ये आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो ये समझिए x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y2, x1 y2। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो अगेन आप क्या देखेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। x वाला चेंज नहीं हो रहा है, सेम है। चेंज कौन सा हो रहा है, y दोनों के y चेंज हो रहे हैं। तो हियर y2 इज ग्रेटर देन y1, तो आंसर आएगा y2 माइनस y1। वरना आप क्या करेंगे, ये p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो व्हेन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो वो कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगा, q एक्सिस पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। तो y एक्सिस पे जाएगा तो देयर x कोऑर्डिनेट इज 0, देयर x कोऑर्डिनेट इज 0, ओनली y कोऑर्डिनेट इज प्रेजेंट। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये सेम वैल्यू इसके लिए भी हो जाएगा। किसके लिए, PQ के लिए भी हो जाएगा, राइट। y2 माइनस y1। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। P सपोज मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, P का वैल्यू है 2,5 और Q का जो वैल्यू है वो है 2,1। सो देखिए P और Q के बीच में कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 2 इज व्हाट कांस्टेंट, 2 इज व्हाट कांस्टेंट, व्हाट इज चेंजिंग 5 and 1, मतलब क्या, y coordinate is changing, y coordinate is changing, so the distance between p and q, distance between p and q। तो डायरेक्टली आपको क्या देखना है, आपको y coordinate देखना है। तो 5 minus 1, आंसर इज व्हाट 4 यूनिट, आंसर इज व्हाट 4 यूनिट, 4 यूनिट। इन दिस वे वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये दोनों, ठीक है। तो दिस वाज द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ द लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू एनी एक्सिस इन द XY प्लेन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास दो पॉइंट्स है, सपोज आपके पास दो पॉइंट है और ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो इसके बीच का डिस्टेंस, सपोज ये A है, ये B है। तो लेट्स से इसका जो पॉइंट है वो x1 है और इसका जो है y1 है, इसका जो है x2 है, इसका जो है y2 है। सो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ दिस टू, दैट इज AB, डिस्टेंस AB इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, इस ये एग्जाम में तो पूछते नहीं है हाउ मतलब डिराइव दिस, बट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट लेता हूँ। अभी तो हमने पैरेलल लिया, पॉइंट्स वहां पे लिया, मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसके दोनों पॉइंट्स देखिए अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। दोनों पॉइंट्स अलग आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे आएगा, y इधर आएगा, इसका x इधर आएगा, y इधर आएगा। दोनों के वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ध्यान से देखिए, यहाँ B से ना x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर,
राइट। और मैं यहाँ बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये 90 डिग्री हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। ये ए है, बी है, सपोज ये सी है। क्या है, सी। ये क्या है, सी। सपोज क्या है, ये सी। तो ये सी का कोऑर्डिनेट बताइए जरा मुझे, तो सी का कोऑर्डिनेट बताइए। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर आया है इसका, ये सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट होगा x2। क्या हो जाएगा, x2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y1। देखिए ना, y पे कितना जा रहा है, y1 जा रहा है, और x पे क्या जा रहा है, x2 जा रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 कॉमा y1, x2 कॉमा y1, राइट। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या जा रहा है, x2 कॉमा y1 जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे ये डिस्टेंस बताइए, AC बताइए और BC बताइए। क्या बताइए, AC और BC। तो पहले AC देखते हैं। डिस्टेंस A कॉमा C, दैट इज AC, दैट इज AC। तो डिस्टेंस क्या होगा, AC देखिए क्या चेंज हो रहा है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या चेंज हो रहा है बच्चों, क्या चेंज हो रहा है, y वाला कांस्टेंट है, y1 कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है, x, और ये चेंज हो रहा है, x1 और x2, मतलब x चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो आंसर इज व्हाट, x2 माइनस x1, राइट। सिमिलरली अगर मैं ये BC निकालूं, B कॉमा सी, डिस्टेंस बिटवीन B कॉमा सी, मतलब BC अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। BC में क्या आएगा, आपका x वाला क्या है, सेम है। तो क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, y2 माइनस y1, राइट। सो अगर मैं ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल BCA, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल BCA, इन ट्राइंगल BCA, एंगल BCA is 90। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, वैल्यू ऑफ BC इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ AC इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी व्हाट, AB का स्क्वायर। तो हमें AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। तो दिस विल बी AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप x2 को आगे लिख सकते हो इस तरह से, और y को बाद में लिख सकते हो, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव हुआ है। बच्चों आपको एग्जाम के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि अगर दो डिफरेंट पॉइंट होंगे तो उन दोनों पॉइंट को आपको मार्किंग करना है, x1 y1 करके एक को, और एक को करना है x2 y2। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो मैं इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली, राइट। तो पहला क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2,3, a इज इक्वल टू 2,3 एंड b इज इक्वल टू 4,1, राइट। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है डिस्टेंस बताइए। क्या बताइए, डिस्टेंस AB बताइए। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में इसको x1 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको y2 ले लेता हूँ। सो अगर मैं बोलूँ तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अब मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू बताइए 4 है, x1 का वैल्यू क्या है 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू बताइए 1, y1 का वैल्यू बताइए 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। द आंसर इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो द यू विल गेट 2 4 8 को आई कैन राइट 4 2 सा, आई कैन राइट 4 2 सा। तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 4 का स्क्वायर रूट इज 2 and 2 का is root 2. So your answer is 2 root 2. So the distance between these 2 points is 2 root 2. So इस तरह से आपको एग्जाम के लिए सॉल्व करना है बच्चों, और कोई तरीका आपको नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ है कि अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर आप ओरिजिन से काउंट करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट इधर है। तो ये ओरिजिन है, सपोज ये P है। तो ये ओरिजिन का क्या होता है, 0,0 होता है, और ये क्या होगा
एक्स कॉमा वाई होगा, क्या होगा एक्स कॉमा वाई, सपोज क्योंकि ये 0 0 है तो इसको x1 y1 देने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई देता हूँ। तो ये ओपी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ओपी का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस काउंट करेंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा ओरिजिन से। बट हमारे केस में यहाँ पे ए बी जो था वो ओरिजिन से नहीं है, ए का भी कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यू है, बी का भी कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यू है, तो इसलिए फॉर्मूला आया ये। तो अगर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 0 रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, वो आपको 0 0 मिल जाएंगे वहां पे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएंगे। इफ द वन कोऑर्डिनेट इज 0, इफ द वन पॉइंट इज ओरिजिन, इफ द वन पॉइंट इज ओरिजिन, समझ में आ गया। ओके, सो इस वीडियो में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट्स 5.1 के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। चलिए, धन्यवाद।